ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का डेट 8 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्मभोग है। प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चे, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, गुरा उस देह अभिमान में कभी न आए। यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है।
हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। তো বাবা বলেছে মহাবাক্যে যে সবসময় আমাদের কি থাকতে হবে, খুশিতে থাকতে হবে, যে আমাদের এখন 84 চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন চলছি আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। তাই জন্য কি করতে হবে, আর বাকি কিছুদিন খুশি খুশিতে এই কর্মভোগগুলিকে যুক্ত করতে হবে। প্রশ্ন, বিকর্মাজিত হওয়ার জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য কি উপায় বলে, কিসের উপর অ্যাটেনশন রাখতে বলে? তো উত্তরে বলেছে যে সর্ববিকর্মে সব পাপের গুড়া হলো দেহ অভিমান, আর এই দেহ অভিমান কি হয় যাতে আমাদের মধ্যে কখনো না আসে, এটা আমাদের সবসময় নজর রাখতে হবে, ধ্যান রাখতে হবে। তার জন্য বারবার আত্মা অভিমানী হয়ে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। ভালো এবং খারাপ দুটো কর্মফলেই আমরা ভোগ করে থাকি, কিন্তু অন্তিম সময়ে বিবেক আমাদেরকে দংশন করতে থাকবে। তার জন্য বাবা বলছে যে কোনো রকম পাপ কর্ম যাতে আমরা আর না করি। এই জন্য বাবা বলে যে এই জন্মে যত পাপ করেছি সব যদি বাবাকে সত্যি সত্যি শোনাই, বলি, তাহলে আমাদের কি হবে, আমরা হালকা হতে পারবো। আচ্ছা, ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता, ज्ञान को बहुत समझते हो, हम सब सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्र से कोई गला नहीं काटते, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यहाँ लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों को घात करना सिखलाते। बाबा की बोले, बाबा এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখায় নাকি যে সুদর্শন চক্রের কথা বলে এই চক্র দিয়ে মানুষকে কাটার কথা শেখায়? রাজযোগ শেখায়। কিন্তু এখন যদি আমাদের ক্লাসে কোনো আউট কেউ আসে, এখন যদি শোনে এসে যে এখানে সুদর্শন চক্রধারী হতে হবে, তো সুদর্শন চক্রধারী মিন্স তো ভাবে যে মানে কৃষ্ণে যেটা হাতে থাকে সেটা দিয়ে গলা কেটে ফেলে। তো বাবা বলছে যে আসলে সুদর্শন চক্রধারী মানে হলো নিজেকে নিজে চেক করা। তো বাবা আমাদেরকে বলছে যে असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। তো আমাদের মধ্যে তো কোনো আসুরি স্বভাব নেই, ঠিক না? যাও আছে তাও এখন কি করতে হবে, হ্যাঁ, শেষ করতে হবে, এগুলিকে এবার বিদায় দিতে হবে। তো বাবা সেটাই বলছে, বাকি মনুষ্য তো মনুষ্য হ্যাঁ না, ऐसा नहीं सुदर्शन चक्रों से बेट सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बेट बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना, क्योंकि सब एक्टर्स है। আমরা সবাই কি এই ড্রামাতে एक्टर एक्ट्रेस, तो वो हद के एक्ट्रेस तो ड्रामा को जानते हैं, यह तो बेहद के ड्रामा है। हदेर যারা স্থূল সিনেমা সিরিয়াল ড্রামা করে তাদের স্ক্রিপ্টটা তারা জানে যে
কী রোল দেওয়া হয়েছে, এবং তারা তাদের স্ক্রিপ্টটা পড়তেও পারে, দেখতেও পারে, চেঞ্জও করতে পারে এবং সাবস্টিটিউট একজনকে রাখতেও পারে। কিন্তু বাবা কি বলছে, এখানের যে ড্রামা, বেহদের যে ড্রামা, সেই ড্রামার আমার সাবস্টিটিউটার কেউ থাকবে না, আমাকে আমারই রোল প্লে করতে হবে। কিন্তু আমার কি স্ক্রিপ্ট আমাকে দিয়েছে সেটা এতদিন আমি জানতাম না, কিন্তু বাবার জ্ঞান পাওয়ার পরে আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমাকে বাবা এই ড্রামাতে কী রোল দিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখন জেনেও যদি উল্টার পথে আমি উল্টা রকম অ্যাক্টিং করি তাহলে কি হবে? ডাইরেক্টরের সাজা খেতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে যে वो है हद के, तुम हो बेहद के, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी है। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। कत जन्म नहीं हमरा हैं? बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकेंड में जान जाती हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया, 84 लाख हो तो सेकेंड में थोड़ी ही समझ सकते हो। 84 लाख जन्म है ही नहीं, तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, মানে আমাদের এখন খুশি হওয়া উচিত যে আমাদের এই 84 জন্মের চক্র সম্পন্ন হচ্ছে। নেক্সট যে জন্মটা নেব সেটা ডাইরেক্ট কোথায় নেব? সত্যযুগে। তো अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह क्या करना है? कर्म भोग करना है। তার জন্য বাবা কি বলছে, আমাদের খুশি খুশি থাকতে হবে। যাই কর্মভোগ আছে কি করতে হবে? খুশি খুশিতে এটাকে যুক্ত করতে হবে। কারণ আমাদের তো লক্ষ্য যে এখানে যদি কর্মভোগগুলো যুক্ত না করে যায় তাহলে তো আবার নেক্সট জন্মে গিয়ে করতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে যাই কর্মভোগ, শারীরিক হোক বা যে কোনো কিছুই হোক, সেটা আমার ভোগ করে যেতে হবে, তাও খুশি খুশিতে। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्मों किए हैं वो लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्मों तो कोई लिख ना सके, विकर्मों तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। যেদিন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে মানে দ্বাপর যুগ থেকে, মানে সত্য যুগে আমাদের কর্ম কি ছিল? দ্বাপর যুগে দ্বাপর যুগে কি হয়? ত্রেতা যুগে সত্য যুগে কর্ম অকর্ম, ত্রেতা যুগে কি হয়? ত্রেতা যুগেও অকর্ম, দ্বাপর যুগ থেকে কর্ম বিকর্ম হতে শুরু করে। তো জানো বাবা কি বলছে, কারণ সত্য যুগ এবং ত্রেতা যুগে রাবণ থাকবে না, আর যেহেতু রাবণ থাকবে না তার জন্য আমরা কোনো পাপ করব না, আর পাপ করব না বলে আত্মার মধ্যে কোনো লেপছ্যাপ কর্মের পড়বে না। আর দ্বাপর যুগ থেকে পাপ শুরু হবে আর আত্মার মধ্যে লেপ পড়তে শুরু করবে। তো বাবা বলছে যে
कर्मों अकर्मों विकर्मों की गति को समझाता हो। विक्रमाजित को संवाद लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीरी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई बात नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप के चित्रों भी बहुत बनाई है, परंतु अर्थों कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकता। ये ज्ञान ये सुंदर नॉलेज बाबा ছাড়া আমাদেরকে দিতে পারবে না। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य नहीं हो सकता। बाप कहते, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पाठधारी। আমরা কি অলরাউন্ড পাঠধারী, মানে সত্যযুগ থেকে শুরু করে সঙ্গম পর্যন্ত আমাদের পাঠ আছে। তো বাবা বলছে যে তার জন্য আমাদের টাইটেল দিয়েছে আমরা অলরাউন্ডার पाठधारी आत्मा। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम भी समझते हो कि दूसरे धर्मों वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो कहेंगे नहीं कि सतयुग में था। क्रिश्चियन सत्ययुगे छिलो ना, है किंतु খ্রিস্টান ধর্মের কিছু আত্মা সত্যযুগে ছিল। কারণ বাবা আমাদেরকে মূলত বলে যে দেবাত্মাগুলি বিভিন্ন ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। আর যেহেতু বিভিন্ন ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তখন আমরা যদি এই বিভিন্ন ধর্মে গিয়ে বাবার জ্ঞানটা প্রচার করি, তখন যে এই ধর্মের যদি কোনো দেবাত্মা হয়ে থাকে, সে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। আর বেরিয়ে এসে সে নিজেকে পাক্কা করে তুলবে জ্ঞানে, এবং যারা ওর আশেপাশে আছে তাদেরকেও সেই জ্ঞানটা শোনাতে পারবে। তার জন্য বাবা বলছে যে ख्रिस्टान के लिए तो यह नहीं कहेंगे, बाप तो द्वापर के बीच में आते हैं। यह तो नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी नहीं सकते। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें है वो छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखना चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है, बाबा कहते सार्विस तो बहुत है। কিছুই যদি না থাকে কিছু তো আমাদের করতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে কি সেবা নেই সারাক্ষণ চিল্লা থাকে। বাবা কি হচ্ছে সেবা তো প্রচুর সেবা আছে, একটু দেখলেই चले। तो ये बोलते यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, মানে বাবার বাচ্চারা যখনই আমরা একান্তে থাকি, ফ্রি থাকি, হ্যাঁ, তখন আজে বাজে চিন্তা না করে, আজে বাজে রিলস না দেখে মোবাইলে বসে বসে যে কোনো একটা টপিক নিতে হবে, যেটা আমি অনেক সময় করে থাকি। টপিক নিতে হবে এবং ওই টপিকের উপরে ক্লাস বানাতে হবে বা বিভিন্ন কিছু পয়েন্টস বানাতে হবে, যেটা দিয়ে অনেক বাবার বাচ্চা আছে যে অনেকরাই পড়াশোনা জানে না। তো বাবা কি বলে যে বিভিন্নভাবে প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে তাকে তার মতো করে বোঝানোর। তো ওই রকম আত্মাদেরকে কী করে বোঝালে পরে তাড়াতাড়ি জ্ঞানটা ধারণ করতে পারবে, তার জন্য বাবা বলছে বিভিন্ন রকম যুক্তি বাবা দিয়ে থাকে, ওইগুলিকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।
जो भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएँ आदि है, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम योग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। ज़रूर संगम योग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यह है आसुरी मनुष्य, स्वभाव वाले पतित मनुष्य। এখানে হলো আসুরি স্বভাবওয়ালা পতিত মনুষ্য। তো এখন কি আমরা আসুরি স্বভাবওয়ালা পতিত মনুষ্য? হ্যাঁ, এখন কি আমরা কি হতে চলেছি? হ্যাঁ, আমরা এখন আসুরি স্বভাব থেকে দৈবী স্বভাবে এসেছি। তার জন্য আমাদের মধ্যে কোনো রকম আসুরি স্বভাবের যাতে না থাকে, তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু বাবার ডিসসার্ভিস হবে। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभों का मेला आदि जो लगाता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? কেন স্নান করতে যায় লোকে? স্নান করলে ভাবে পবিত্র হয়, पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। যেখানে যেখানে মানুষ স্নান করতে যায়, যেখানে যেখানে মানুষের ভিড় থাকে, সেখানেই গিয়ে আমাদের জ্ঞানটা শোনাতে হবে। मनुष्यों को समझाना चाहिए, यहाँ पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालों में जाकर यह पर्चे बांटने लिए बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वो जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। की बुझाते হবে আমাদেরকে? কি টপিক দিয়েছে বাবা? আর আর টপিক কি? কোন কোন পিকচারের উপরে বোঝাতে বলেছে? এখন কোন কোনগুলির কথা বলেছে? হ্যাঁ, শঙ্কর মাতা যে ভীষণ ধ্যান দিয়ে মূলি শোনে। তো বাবা বলছে যে শিব আর শঙ্কর যে আলাদা, এই টপিকে আমাদের বোঝাতে হবে। মানুষ 84 জন্ম নেয়, 84 লাখ জনিতে আসে না, সেটা বোঝাতে হবে। মানে আমাদেরকে 3টা পিকচার নিতে হবে। শিব শঙ্করের পিকচারটা, তারপর সৃষ্টিচক্রটা, তারপর মনুষ্যাত্মা 84 লাখ জন্ম গ্রহণ করে না, 3টা पिक्चर। जाओ जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्मों फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। यही गोला भी होना चाहिए। इसीलिए मुख्य 12 चित्रों को कैलेंडर्स व छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए, यह बेट लिखो। কোন চিত্রটার সাথে কোন পয়েন্টটা দিয়ে বোঝালে তাড়াতাড়ি বুঝবে। তো বাবা বলছে এই পয়েন্টগুলি নোট করো এবং সেবাতে নেমে যাও। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का क्या कर रहे हो? और तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, अहिंसक योद्धा हमरा। तुमको कोई नहीं जानते हैं। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। कारा कारा गुप्त? আর কে গুপ্ত?
इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक की बाइबल आदि छपती है जो पढ़ते आती है, हर एक के छपती है, तुम्हारी फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना, क्योंकि अभी है तो शास्त्र आदि सब खत्म हो जाना है। अभी तुमको बुद्धि में यह सिर्फ याद करना है, बाप के पास में बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही पढ़ाते। यह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला। ठीक ना बाबा, सबार दिल के जाने ना, मन के जाने ना। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। ठीक है ना। भगवान देखছে কে কি কর্ম করছে এবং তার জন্যে সে তার কর্মের ফল কর্মভোগ যেটা পেয়ে থাকে। সেটা কি মিথ্যে না সত্যি? তো বাবা বলছে কি যে এটা মানুষের ভাবনা, ভগবান দেখবে। হ্যাঁ, অনেকে বলে না ভগবান তুমি দেখো, তো বাবা বলছে কি ভগবানের ঠেকা নেই বসে বসে কে কী করছে সেটা দেখার। যে যেরকম কর্ম করবে তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে। তা আমার ভোগ করার বা আমার সাজা দেওয়ার কোনো রকম দরকার নেই, কারণ বাবা যদি সাজা দিয়ে থাকে তাহলে বাবারও পাপ লাগবে। ঠিক না? তাকে কষ্ট দিলে তো সেই দুঃখটার পাপ লাগে না। তো বাবা কী বলছে, আমার পাপ নেওয়ারও দরকার নেই, পাপ দেওয়ারও দরকার নেই, তোমার পাপের ভোগ তুমি ভোগ করো। সেজন্য বাবা বলছে যে এটা মানুষের ধারণা, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের ধারণা এটা नॉय। बाप कहते ये ड्रामा में नून है, ड्रामा में जो विकर्म करते उनकी सजा तो होती जाती है, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकती है ज़रूर कर्मों का फल दूसरे जन्मों में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर खाता है, हमने यह पाप किए हैं। যখন তার মৃত্যুর সময় আসে তখন তার সব কিছু চোখের পর্দায় ভাসতে থাকে এবং সে তখনই তার বিবেক দংশন করতে শুরু করে। তো সেই জন্য এই দিনটা যাতে সবার তো আসবে, কিন্তু ওই সময়টা যাতে কারোর না আসে, ওটার জন্য বাবা আমাদেরকে আগে থেকে প্র্যাকটিস করিয়ে পারফেক্ট বানিয়ে दिच्छे। सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमाजित बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। तो बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? और এসে গেছে, উত্তর এসে গেছে। সুদীপ ভাইয়ের উত্তরটা ঠিক আছে, এরপরে কি করতে বলে? देही अभिमानी बन क्या करो, और क्या करना है? आत्मा देखना है, और क्या करना है? देही अभिमानी माने आत्मा अभिमानी होए बाबा के याद करते होबे। ठीक आछे, तारपर की होते होबे? हाँ, पवित्र बनना है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत क्या है? दुख देने वाला है। इसीलिए सन्यासी भी कहते यह काग बिष्टा समान सुख है, वह दुख का नाम नहीं होता। यह दुख ही दुख है। इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है।
परंतु वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का बुराई गो, तुम्हारा है बेहद का बुराई गो। यह दुनिया है छी है। सब कहते बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वह किसी भी प्रकार का क्या नहीं था और पाप नहीं था और दुख नहीं था। সত্য যুগে কোনো প্রকারই দুঃখ থাকবে না। তো বাবা বলছে কি যে বাবা হলো दुख हरता सुख करता। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि हम नरक में हैं। কেউ মারা গেলে পরে বলে যে মানুষ স্বর্গবাসী হয়। তো বাবা বলে যে সত্যি যদি স্বর্গবাসী হয়ে থাকে তাহলে তুমি নরকবাসী, ঠিক না? কিন্তু এইটা কেউ মানতে রাজি না। কিন্তু স্বর্গ তো আর মেঘের ভিতরে লুকিয়ে নেই বা স্বর্গ কোনো ছাদের উপরে আটকে পড়ে আছে না। তো যে স্বর্গ তো এখানেই হবে। আর এখন যারা শরীর ছাড়ছে তারা ঘুরে ফিরে আবার এখানেই জন্ম নেবে। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए। অনেকের আফসোস থাকে আরে স্বর্গে জানি কবে যাব, তখন কি বলে যদিন মরবো সেদিনেই স্বর্গে যাব। কিন্তু বাবা বলে কি মরলে পরে যদি স্বর্গে যাওয়া যেত তাহলে কবে সবাই সুইসাইড করে দুনিয়াটাকে পরিষ্কার করে স্বর্গের দিকে রওনা দিত, ঠিক না? কিন্তু মরলে পরে আর কেউ স্বর্গে যায় না। तो बाबा ने कहा तुम सब कहते बाबा हमारे आकर दुख हरो, यह दुनिया बहुत छी है। परंतु वो जंगल में चले जाते हैं, वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता। इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। तुम बच्चे जानते हो ना। तो परंतु यह थोड़ी समझते हैं हम तो नरक में होते हैं, हम जब मरते हैं तब स्वर्ग में जाएंगे। परंतु वो भी स्वर्ग में गया बाया नरक में आया। अच्छा लोके যখন বলে যে মানুষ মারা গেলে স্বর্গে যায়, তো সেটার কি কোনো লক্ষণ দেখা যায় যে এইটা এইভাবে মরলে পরে সে স্বর্গে যাবে? হ্যাঁ, কোনো লক্ষণ আছে? তো আমরা কী করে বলতে পারি যে সে ডাইরেক্ট স্বর্গে গেছে? স্বর্গেও যেতে পারে, পাতালও যেতে পারে, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। কিন্তু আমরা স্বর্গটাই কেন বলে থাকি? কারণ এটাতে কোনো লক্ষণ বা কোনো কিছুই আমরা দেখি না যে স্বর্গে যাওয়ার মতো। তো বাবা সেটাই বলছে যে তাদের জ্ঞান দিয়ে পয়েন্টস দিয়ে তাদেরকে তীর মারতে হবে। তো বাবা বলছে সেটাই যে कुछ भी समझते नहीं है। মানুষ যা আসছে তা বলছে, যা সামনে দেখছে তাই করছে। মানে এখন দেখাদেখি কম্পিটিশান শুরু হয়েছে, নিজের মন থেকে কোনো কিছুই করে না। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा है। फिर यहाँ संगम युग पर है। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए ना। वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं धर्मों नमो कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण को। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, वो ही कलियोगी। यह है पुरुषोत्तम संगम योग, जब तुम मनुष्यों से देवता बनते हो। देवी देवता धर्मों की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सब हाँ এগুলি নিয়ে বেরোতে হবে। আর হ্যাঁ আর হ্যাঁ जरूर होता है। अच्छा नंबर 1 पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है। एकांत व फुर्सत
तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने बा सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। नंबर 2, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म में किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाना है। वरदान। अटल भाभी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। व्याख्या आबार रिपीट करे नहीं। अटल भाभी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। व्याख्या हलो नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भाभी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्मों और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्धों के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करती है। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और बाप कहते हैं वो यह कार्य अनेक बार हुआ है। मानुष तो आशाहीन हुए पड़ेছে যে এই দুনিয়ার পরিবর্তন যতই যে আসুক সিটে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, এই ভাবনা রেখে মানুষ হাঁটু ভেঙে ঘরে বসে গেছে। কিন্তু এই নিরাশার দুনিয়াতেও আমরা বাবার বাচ্চারা আশার আলো জাগিয়েছি যে না, এই বিশ্ব পরিবর্তন হয়েছিল, আবারও সেই মহাপরিবর্তনের দিকে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। अभी भी हुआ ही पड़ा है। तो बाबा क्या बोलছে এখনো তোমাদের জিত হয়েই পড়েছে। তো যেরকম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল সবাইকে তো আমি মেরেই রেখেছি, তুমি শুধু একটু যুদ্ধে নামো। তো বাবাও বললে কি আমি তো পরিবর্তন করেই রেখেছি, শুধু তুমি একটু যাও, গিয়ে এগিয়ে যাও।
क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता है। আমি পরিবর্তন হয়েছি তো আমাকে দেখে অটোমেটিক্যালি পরিবর্তন হবে, এই জন্য বাবাকে বলে নিজেকে নিজে চেঞ্জ করো, কারণ স্বপরিবর্তনের থেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কোনো কিছুই দুনিয়াতে হতে পারে না। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है। अच्छा स्लोगन है आज का, बहुत सुंदर। कहना कम करना ज़्यादा, মানে আমরা যে কোনো সেবা করতে গেলে ডায়লগটা সারাক্ষণে মারি আর কি, মানে আমাদের টিম যখন সেবা করে আমরা কোথাও कहना कम करना ज़्यादा यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। ফরফরি না করে কি করতে হবে, সারাক্ষণ কি হচ্ছে বলো কম করো বেশি, তাহলে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে মহান হতে পারবে। আবার রিপিট, कहना कम करना ज़्यादा यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। আর আজকের অব্যক্তির সাথে ফাটাফাটি, আজকের অব্যক্তি সেটা হলো सेवा में बा स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यास। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्पों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्मों में भी बाप के साथ, बुद्धि में भी बाबा। ऐसे लवलीन स्थिति में रहो, एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। যাই কিছু হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে কথা শুরুতে বাবা, শেষেও বাবা থাকবে, মানে কি আমাদের সারাক্ষণ বাবা 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 এই স্মৃতিতেই থাকতে হবে। তাহলে আমরা যেটাই বলবো আরেকটা আত্মা আমাদের বলের অ্যাট্রাকশানের সেও বাবার বাচ্চা হবে। তার জন্য বাবা বলছে যে ऐसा लाभलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्रों का काम करेगा। तो আমাদের জাদু মন্ত্রের চাবিকাঠি কি? হ্যাঁ বাবা। তো সারাক্ষণ আজকে শিল্পী মাতাজির মতো বাবা মেরা বাবা এইটা বাবা করো, ঠিক আছে? আজকের সমান হলো মেষদা সমর্থ आत्मा। ओम शांति।